Hello. Hello, ma'am. Hello. Hello, ma'am. Hello. So, what is your name, ma'am? I am Captain Sahana Sundar, retired. Ma'am. I'm Kirtana Venkatesh. So, you write books. Yes, I have written a novel called Anand. It is basically an entrepreneurship book, and it has dreams, passions, and it is basically on a coffee book. It can be called as a coffee book. Yeah, I'm the author of Storm Beneath the Grey, which is an anthology of 5 stories, and they're all based on social psychological issues. मैम जो डिस्कशन होने वाला है वो लाइक डिस्कशन का नेम क्या है मैम? The impact of global culture on India. Ma'am, ma'am, what do you think about that? What is the impact of? See, as the barriers are breaking and the world is becoming one, there is a great impact of culture of the world on India, basically in Indian literature. So, and we also have got various as the education, as the technology, science, and science is advancing and the technology is advancing. We are becoming connected to the global world, and we are learning a lot, and we are imbibing that in our culture. I think on a more stronger basis, as in see, we are living in a more globalized village kind of a world. So, is हिसाब से if you go to see, there's a lot of influence of various other cultures on us, and we have to we're starting to integrate that with the Indian culture that we have. So, how is it that we portray what we are today to the world? We have MNCs. India is like the youngest country. We have the largest working population, which is going to go on till 2070. And there's a lot of influences that happen at the mental level, physical level, psychological level, thinking process, economy, society. So that's what we try to portray because the best way to tell anything is through stories. Ma'am, my question is Indian people want to be like a American, and they lose their own Indian I- Indian identity. So, what do you see? This is like saying when the Mughals came to India, did Indians become Muslims? Or did they embrace the Mughal style? No, we integrated it. So we integrate Indians, especially are people, our cultural set of people who can integrate various things. So it's not like we're losing our Indianness, but we're trying to integrate and amalgamate other cultures into the way we live. Just because we eat a burger, we don't become an American, or just because we eat kimchi, we don't become a Korean. But we're happy kind of integrating all of that. It's like, Indian Chinese is a cuisine in itself. So there's a lot of Indianness in the Chinese food that we eat. So that's how it is. So a lot of Western culture we are imbibing in, but we are very strong and we have got deep roots in our own culture. We don't give up our culture, though we imbibe certain aspects of the culture from the other parts of the. हाँ हाँ क्यों नहीं थोड़ा हिंदी में कह सकते हैं हाँ हाँ एक मिनट का जाता ठीक है सो मैम आपकी जो आपने जो बुक लिखी हुई है उसका नाम और बता सकते हो कि किस नेम पे कहाँ अगर करना चाहें तो अच्छा मेरा नाम सहना सुंदर है। मैं एक कादम्बरी लिखी हूँ, उसका नाम है आनंद। ये अमेजोन पे अवेलेबल है। ये बेसिकली सिद्धार्थ हेगड़े का जो रिवर में सुसाइड किया था, उसका स्टोरी का इंस्पिरेशन लेके मैंने ये बुक लिखा है। ये पूरा कॉफी इंडस्ट्री का है और इट has love, passion and entrepreneurship in it. आपके बुक में काम अच्छा, मेरा नाम कीर्तना वेंकटेश है और मैंने लिखा है एक बुक जिसका नाम है स्टॉर्म बीनीथ द ग्रे। तो ये किताब जो है 5 कहानियों के ऊपर आधारित है जो सारी सोशल साइकोलॉजिकल इश्यूज पे है, जैसे कि होमोसेक्सुअलिटी या फिर मेल इनफर्टिलिटी या अगर डिवोर्स जो है वो कितना पर्टिनेंट है इस जमाने में। डज इट हैव द सेम स्टिग्मा जैसे पहले था कि लोग बोलते थे कि डिवोर्स क्यों हो रहा है, तलाक क्यों हो रहा है, लेकिन आजकल लोग बोलते हैं कि या तो मैं खुश रहूं या फिर दुखी रहूं। तो दुखी से साथ में रह के दुखी होने से तो अच्छा है कि अलग रह के खुश रहें ना। तो ऐसे कई चीजें हैं जिसके बारे में मैंने इस बुक में डिस्कस करने की कोशिश की। ये बुक हमारे पास मिलेगा, कोहली बुक डिपो में है, अमेजोन पर भी मिलता है जी।
तो मैम जैसे कि आपने कहा कि आपकी बुक लाइक डिवोर्स वगैरह के ऊपर बात करती है, तो मैम आपके हिसाब से जो डिवोर्स हो रहे हैं आजकल तो बहुत ज़्यादा हो रहे हैं और बहुत ज़्यादा केसेस बढ़ गए हैं, तो ये ठीक है? देखिए, अंत में ना हर किसी इंसान को खुश रहने की कोशिश करनी चाहिए, राइट? तो हम लोग इतने स्ट्रेस के मैं बोल नहीं रही हूँ कि ये सही है, लेकिन गलत भी नहीं है। इट्स अ वेरी ग्रे एरिया। इसीलिए मेरा बुक का नाम भी है स्टॉर्म बीनीथ द ग्रे, जो एक ग्रे एरिया जो है, जो बीच का जो रास्ता है, उसको एक्सप्लोर कर रहा है। ये कि गलत है, शायद कभी गलत हो सकता है, शायद सही हो सकता है, लेकिन दुखी रहने से तो अच्छा है कि सुख से रहें। That's the way. And I'm not talking about कि divorce करना ही चाहिए, divorce is the only way out. But अगर वही एक रास्ता है तो how do you go about it? And that's only one of the other 5 topics. जैसे कि एक और टॉपिक है vegetarianism versus non-vegetarianism versus veganism पर, कि इसको लेके इतना पॉलिटिकल इश्यू बना लेते हैं लोग। क्या ये सही है? लोगों के ऊपर जैसे मैम कि जिनका डिवोर्स नहीं होता था पहले, वो मतलब कुछ रहता थी, आप बताइए मुझे। दुखी हो मतलब थे क्या वो एक दूसरे के साथ में? हाँ, जैसे कि अगर कोई है जहाँ पे जैसे कि मैरिटल अब्यूज जो है, पहले ये तो अभी भी काफी लोग हैं ऐसे, जो काफी औरतें हैं जो उसको सह लेते हैं, बोलते हैं कि बच्चों की अच्छाई के लिए हम रह लेते हैं साथ में, लेकिन बच्चे क्या खुश होंगे? माँ बाप को रोज लड़ते हुए देखे क्या खुश रहते हैं? उनके ऊपर कितना मेंटल अब्यूज गुजरता है बच्चों पे। उससे तो अच्छा है कि दे लिव इन अ हैप्पी एनवायरनमेंट। मैम मेरे को अभी कुछ दिनों पहले एक मतलब औरत मिली थी जिसके पति ने उसको मतलब बिना उसको डिवोर्स दिए दूसरी शादी कर ली। उसके 3-4 बच्चे भी थे, तो अब वो कहाँ जाए? लाइक वो पढ़ी लिखी भी नहीं थी उतनी जो अपने बच्चों को संभाल पाए और उसको संभाल पाए। देखिए, ऐसे लोगों के लिए ना देर आर काफी सारी ऑर्गेनाइजेशंस है, वुमेन्स हेल्थ ग्रुप्स है, आजकल तो सपोर्ट ग्रुप्स हैं काफी ज्यादा। और वुमेन एम्प्लॉयमेंट के लिए, जैसे कि जिन लोगों ने ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हो, तो उनके लिए भी काफी सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस है जो मदद करने के लिए आगे आते हैं। तो अगर ऐसे आप अगर उनको जानते हैं तो बोल सकते हैं कि ऐसे वुमेन्स ऑर्गेनाइजेशंस के पास चले जाएं, वो उनको घर भी दिलवा देते हैं। लास्ट क्वेश्चन है आप दोनों से कि मैम जो ये आपको पता होगा कि एक्स्ट्रा जो मैरिटल अफेयर है वो मैम लीगल हो गया इंडिया में, ठीक है मैम, शादी के बाद भी? हमारे कल्चर के हिसाब से तो गलत है, या तो एंड आई एम टॉकिंग अबाउट जैसे कि हिंदू कल्चर्स में ना ऐसे माना जाता है कि एक हस्बैंड एक वाइफ के जैसे हिसाब से होना चाहिए। तो कल्चरली हमें लगता है कि ये गलत है। एंड अगर दो लोगों के बीच में अगर कोई प्यार नहीं है, कोई रिलेशनशिप नहीं है, दे शुड नॉट बी इन द रिलेशनशिप। तो शादी नहीं करनी चाहिए थी? नहीं, हाँ, शादी ही नहीं करनी चाहिए थी। शादी होने के बावजूद वो किसी और के साथ है तो वो तो गलत ही होता है, क्योंकि आप किसी और को दुख पहुंचा रहे हैं ना। तो गवर्नमेंट ने इसको लीगल क्यों कर दिया मैम? अब इसके बारे में मुझे तो ज्यादा इन्फॉर्मेशन है नहीं, तो मैं बता नहीं पाऊंगी। गलत नहीं होगा? मेरे हिसाब से तो गलत है। जिस रिलेशनशिप में कोई प्यार नहीं है, वो रिलेशनशिप होना ही नहीं चाहिए। थैंक यू। थैंक यू। आपका क्या व्यू है? Actually, extramarital affair it's a गलत चीज है, गलत चीज है। पता नहीं गवर्नमेंट इसको कैसे वो एक्सेप्ट कर लिया है। बट हम औरतें, इंडियन का औरतें इसका वी डोंट अग्री अपॉन इट। ओके, ये गलत है और गवर्नमेंट इसको अग्री नहीं करना चाहिए। और किसी का फैमिली ब्रेक करना ये मॉरली एंड मॉरली इट इज रॉन्ग। दैट्स व्हाट आई Thank you, वांट। ma'am.